હેલો એવરીવન, કેમ છો તમે બધા? હું છું એન્કર જયમીન, કેનેડાનો એકમાત્ર ગુજરાતી એન્કર. આઈ હોપ એવરીવન ઇઝ કીપિંગ સેફ એન્ડ વેલ. ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત કેનેડા આપનું સ્વાગત કરે છે ગુજરાતી ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં. વિદેશમાં દેશી ફૂડનો તડકો એટલે આપણા ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત કેનેડાનો ગુજરાતી ફૂડ ફેસ્ટિવલ. મિત્રો, કોવિડની પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં તમારા માટે ગુજરાતને અને ગુજરાતી ફૂડને અહીંયા લાવવું એ શક્ય નહોતું. પણ એ બધી વાતોમાં અમે ક્યાં માનીએ. હવે અમે તમને લઈ જવાના છીએ ગુજરાતની અમેઝિંગ ટૂર પર. પણ કઈ રીતે? પ્રશ્ન થયો, શું કઈ રીતે? તો હું તમને કહી દઉં કે આપણે જવાના છીએ ગુજરાતની વર્ચ્યુઅલ ફૂડ ટૂર પર, કે જ્યાં હશે રંગબેરંગી, મસાલેદાર, ચટાકેદાર, સ્વાદિષ્ટ, ખબર નહીં કેટલા પ્રકારની વાનગીઓ. બટ ફોર ધેટ લેટ મી કનેક્ટ ટુ વેરી બ્યુટીફુલ, ટેલેન્ટેડ અને લાલ મરચા જેવી તીખી મજેદાર રોમા મંગલાની સાથે. લેટ મી કનેક્ટ ટુ હર. હાય રોમા, હાઉ આર યુ? I am so good, and what about you? And I'm super proud to be a Gujarati. Today, I can't wait to show you guys this beautiful virtual Gujarati food festival. We are so much excited to know exactly આ ગુજરાતી dishes વિશે અને આજની જર્ની વિશે. मुस्कुराइए, आप गुजरात में हैं. यहाँ सुबह हो या शाम, नाश्ता रहे आपके लिए हमेशा तैयार. So let's get excited and visit Tea Post. Hi, welcome to Tea Post. Thank you so much. Yeah, have a seat. Thank you. So firstly, Darshan bhai, thank you so much for being an amazing part of this virtual Gujarati food festival. Let me tell all of you and let me tell you that our friends of Gujarat Canada has arranged this amazing virtual Gujarat food festival. So આજે બ્રેકફાસ્ટમાં શું ખવડાવી રહ્યા છો તમે? તમે ગુજરાતની જ વાત કરો છો તો અમારે ત્યાં ફાફડા બહુ જ ફેમસ છે અને આજે હું ગાંઠિયા અને ફાફડા તમને બ્રેકફાસ્ટમાં ખાસ કરીને ખવડાવીશ, જે અમારી જગ્યાની ફેવરિટ આઇટમ છે, લોકોને પણ બહુ પસંદ છે અને હું તમને પણ એ જ ખવડાવીશ આજે. I am so excited and so are the viewers, right? So let's have the breakfast here. મારા તો મોંમાં પાણી આવી ગયું છે. આઈ એમ શ્યોર વ્યુઅર્સના મોંમાં પણ પાણી આવી ગયું છે. આ બહુ ટેસ્ટી દેખાય છે. ફાફડા એટલે ગુજરાતની તો ખાસ વાનગી છે. ગુજરાતી ફાફડા વગર જ અધૂરો છે એમ કહી શકાય આમ જોઉં તો. That's true, that's true. So now let's hop on to the breakfast. It's beautifully served and we have a lot of chutneys in here. ફાફડાને ખાવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ વસ્તુઓ ખવાતી હોય છે. Okay. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં ફાફડા સાથે કઢી ખવાય છે, સૌરાષ્ટ્રમાં ફાફડા સાથે પપૈયા ખવાય છે, કોઈ જગ્યાએ ફાફડા સાથે ગાજરનું કચુંબર ખવાય છે. એમ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ વ્યંજનો સેટ કરેલા છે. ધોરાજી જાઓ તો ફાફડા સાથે દહીં ખવાય છે. એમ અલગ અલગ જગ્યાએ ગાંઠિયા સાથે અલગ અલગ વસ્તુઓના કોમ્બિનેશન્સ હોય છે. મરચા કોમન છે બધી જગ્યાએ. That's nice. This is amazing, amazing, man. मैंने खाए हैं गांठिए, बट ऐसे गांठिए मैंने कभी नहीं खाए. કોઈ કાફેમાં ગાંઠિયા મળતો હોય એવો કદાચ ગુજરાતનો આ પહેલો પ્રસંગ છે. That's true. ગાંઠિયા હંમેશા લોકોએ લારીમાં ખાધા છે, રોડ સાઈડ ખાધા છે. એક કેફેમાં આ એમ્બિયન્સમાં ગાંઠિયા ખાવાતા હોય એવો કદાચ અમારા ટી પોસ્ટથી પહેલો પ્રસંગ બનતો હશે. So Gujaratis are always expert to mix and match things, and this is the proof how we mix and match. અમે ગાંઠિયાને ગ્લોબલ કરવું છે એટલા માટે અમે ગાંઠિયાને કેફેમાં નાખ્યા છે. I'm sure એ ગ્લોબલ થવાનું જ છે. થઈ ગયું છે actually. Almost, yeah. Yes. So firstly I would wish to know why Gujarati food? कैफे इतना बढ़िया एम्बियंस, so आपने गुजराती फूड क्यों सिलेक्ट? જનરલી કેફેમાં લોકો ગુજરાતી ફૂડ પ્રિફર કરતા જ નથી રાખવા માટેનું. પણ અમે એક એવા અમે પહેલેથી એઝ બિઈંગ એ ગુજરાતી, મને ગુજરાતી ફૂડનો શોખ તો હોય જ નેચરલી. પણ ગુજરાતી ફૂડ હવે ગુજરાતી નથી રહ્યું. હવે આ ફૂડ ગ્લોબલ બન્યું છે. લોકોને ભાવે છે બહુ, લોકો ખાય છે બહુ, લોકો અમને ગાંઠિયા, ફાફડા, ઢોકળા, હાંડવાથી ઓળખે છે. એટલે અમને એક એવો ઇનિશિયલી જ્યારે ગાંઠિયા રાખ્યા ત્યારે લોકોએ એવું કીધું કે આ એક વિયર્ડ વિચાર છે કે કોઈની કેફેમાં ગાંઠિયા ન હોય. પણ આજે એવી પરિસ્થિતિ છે કે અમારા આ બધા કેફે ગાંઠિયાથી ઓળખાય છે. પીપલ કમ હિયર ફોર ગાંઠિયા. આ ગુજરાતી ફૂડ હોવાના કારણે અમારે ત્યાં કોઈ કેફેમાં એક સિંગલ એજની જનરેશન જતી હોય છે.
જનરલી લોકો એક એજ ગ્રુપ હોય છે જે કેફેમાં જતું હોય છે. અમારે ત્યાં 4 જનરેશન ભેગી આવે છે. અમારે ત્યાં સિનિયર સિટીઝન પણ એટલા આવે છે. અમારે ત્યાં સિનિયર સિટીઝન સાથે એના 4 પેઢી ભેગી આવે છે અને ભેગા બેસીને અમારું ગુજરાતી ફૂડ એન્જોય કરે છે. वैसे भी हमने 3 इडियट्स में सुना ही है, खाखरा, हांडवा, फाफड़ा इसी नाम से गुजरातीज जाने जाते हैं और आपने इतनी ज़्यादा तारीफ की है तो आई कांट वेट टू हॉप ऑन टू द फाफड़ा. इट्स सो सॉफ्ट, इट्स सो सॉफ्ट. आई वुड लाइक टू नो कई રીતે શરૂઆત થઈ છે ટી પોસ્ટની. टी पोस्ट हमने शुरू किया 2013 में. 1 मई 2013 वॉज द फर्स्ट डे फॉर टी पोस्ट. हमने उससे पहले 1 महीने से हम रिसर्च कर रहे थे. और चाय एक ऐसी प्रोडक्ट है, हमने बेसिकली शुरुआत की चाय से. तो चाय एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट में हर ओकेज़न में चाय की रिक्वायरमेंट है. और मैं कहाँ जहाँ भी सर्वे कर रहा था छोटे छोटे गाँव में भी, तो कोई भी गांव चाय पिए बिना नहीं चलता है. इंडिया ना फर्स्ट जो पानी के बाद में जो सबसे बड़ा कंज्यूमिंग लिकर है तो दैट इज़ टी ओनली. तो हमने चाय में ही काम शुरू किया और पहला आउटलेट हमने 2013 में शुरू किया विथ द विज़न ऑफ 100 और 1000 आउटलेट्स इन फ्यूचर. Oh, that's a huge vision and trust me, I loved how it tastes. So मैं नॉन गुजराती हूँ बट जब ये चीज़ें देखती हूँ तो मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आता कि मैं आज ऐसा नॉन है ही नहीं गुजराती कि हूँ. ये ग्लोबल फूड ही बन गया है सबको. एग्जैक्टली, पीपल लव दिस सो मच और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उतना ही मीठापन है, उतना ही तीखापन है. इट्स सो परफेक्टली ब्लेंडेड. सो आपने कहा काफ़ी जगहों पे दही के साथ सर्व किया जाता है, कितनी जगह पे कड़ी के साथ सर्व किया जाता है. ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये बहुत ही अमेजिंग है. सो आप कुछ बताना चाहेंगे इस कॉम्बिनेशन के बारे में? इसमें है मिर्ची है. दूसरा गाठिया के साथ हम चटनी बनाते हैं जो पुदीना की बनती है. पुदीना या मिर्ची को मिक्स कर दे और साथ में केरट का कचुम्बर है. ये कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन है. हमारे जितने भी काफ़े हैं वहाँ पे हम इसी तरह से इसको करते हैं. हमने इस रेसिपी को फ्रीज किया हुआ है एंड दिस वे इन एवरी काफ़े दिस काइंड ऑफ सर्विस इज अवेलेबल. Okay, that's so sweet, that's so amazing and it tastes एंड पीपल amazing. लव दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. एक्चुअली पुदीना उतना ही मीठापन उतना ही तीखापन बहुत ही अमेजिंग है. मतलब नाश्ते के लिए दिस इज अ परफेक्ट डिश एनीबॉडी कैन एवर वी हैव. डू गाठियोत्सव ओवर हियर. हम यहाँ पे ये गाठिया बोलता है, गाठिया का उत्सव बनाते हैं हम यहाँ पे. और कोई बार महीने में 2 महीने में एक बार गाठियोत्सव करते हैं. दैट टाइम पीपल कम हियर इन अ रश एंड वो एक साथ में सब लोग बैठ के गाठिया खाते हैं यहाँ पे. दैट्स अमेजिंग, दैट्स सो थॉटफुल. अब ये छोटी छोटी चीजें इतनी मैटर करती है कि बस आप पूछे ही मत. और ये एक ऐसी डिश है जो पूरी फैमिली को रीयूनाइट करती है. सो दैट्स द वन थिंग आई लव्ड अबाउट इट. सो घर पे कितना भी ट्राई कर ले इतना अमेजिंग टेस्ट तो नहीं आता है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप व्यूअर्स को थोड़ा बहुत रेसिपी सीक्रेट अगर शेयर करना चाहें तो. ये गाठिया और फाफड़ा की जो रेसिपी है वो जो हमने फ्रीज़ किया हुआ है और हमने हमारे शेफ़ एक्सपर्ट जो है उसी पास हमने ये सब बनवाया है. चटनी में नथिंग एल्स, आप घर पे जैसे बनाते हो ऐसे ही बनाया हमने. इसमें पुदीना लिया है, मिर्ची लिया है, शुगर लिया है और सब वो सब मिला के बनाया है. और बाकी तो केरट का कचुम्बर है उसमें भी शुगर डाला हुआ है. और ये सब एक साथ में एक शेफ़ के पास फ्रीज़ करवाया और सब आउटलेट में सेम टेस्ट एंड सेम एवरीथिंग इज अवेलेबल हो गया. That's nice. Sugar is also known as the heart of Gujarati food. So you have not forgotten to mix the sugar so well कि जो लोग spicy खाते हैं उनको भी मज़ा आ जाए और जिनको गुजराती का टच चाहिए उन्हें भी मज़ा आ जाए. दोनों पंच मिलेगा आपको, शुगर का भी पंच मिलेगा और स्पाइसी का. पंच भी मिलेगा. That's amazing. So why tea post? नाम आप coffee post भी रख सकते थे, कुछ और भी रख सकते थे. So what is the reason behind this name, tea post? चाय मेरा शौक था पहले से. सिंस कॉलेज आई वॉज हैविंग टी और हम हर मेट्रो में दिन में 10-10 बार चाय की थड़ी पे ही बैठते थे. तो चाय की थड़ी पे बैठते हमें सोचा कि चाय का ही धंधा करना है हमें आगे जाके. तो टी पोस्ट आप लोग ने सुना होगा कि पोस्ट मीन्स मुकाम, फाइनल डेस्टिनेशन. हम जो पोस्ट कार्ड में एक ज़माने में लिखते थे कि पोस्ट मुकाम पोस्ट, तो पोस्ट इज़ अ फाइनल डेस्टिनेशन. तो चाय का दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन, ये समझ के हमने ये किया है कि इट इज़ अ टी पोस्ट. Nobody knew कि एक नाम के पीछे इतनी अच्छी स्टोरी छुपी हो सकती है. I'm so glad that the viewers now know the story behind tea post. So हमने बहुत सारी वेराइटीज़ के बारे में सुना है जो टी पोस्ट ऑफर करता है. फाफड़ा और गाठिया तो खा लिया, आप बताना चाहेंगे और क्या क्या ऑफर करते हैं टी पोस्ट? हमारे यहाँ सब तरह का टेस्ट अवेलेबल है. इसमें सैंडविचीज़ भी है और गुजराती फूड में आप देखो तो थेपला भी अवेलेबल है, हांडवो भी अवेलेबल है, मुठिया है, ढोकला है. ये सब चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है. दैट एवरीथिंग वी मेक फ्रेश ओवर हियर एंड देन सर्व इट. That's amazing. So आपने बोला ही है you guys make it fresh. So I would really love to know कि इतना जो soft है, इसमें जो softness है, ये सब कैसे आई? हम देख सकते हैं इसका process? Definitely you can see. हमारा किचन इधर ही है और ओपन किचन है हमारा. Any customer can see. हमारा किचन ही ऐसा है कि कस्टमर को देखने के लिए है. That's so very anybody nice. can see that. वैसे भी आजकल हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है. Yeah. So let's see Definitely, how yeah. it is made.
प्लीज़। Sure. प्लीज़ कम। Thank you. आइए। So મહારાજજી કેમ છો મજામાં? મજામાં બહુ સારું દેખાય છે. इसमें जो बेसन है, जी. बेसन और जो मिक्स किया हुआ जो ये आटा है, उसको ये प्री मिक्स है ऑलरेडी। Okay. कोई भी आउटलेट में आप जाओगे हमारे जी. तो ऐसे ही ये प्री मिक्स किया हुआ है। फिर बाद में इन लोगों का कसब शुरू होता है। Okay. ये जो आर्ट है ना, जो बनाने का आर्ट है, वो कोई मशीन कट आर्ट नहीं होता। दिस इज प्योरली हैंडमेड। तो इसमें हम कोई मशीन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि यदि जो स्वाद है उसका मशीन बहुत सारे है, लेकिन जो टेस्ट नहीं मिलता है। Exactly. तो इसको बनाने का एक ही है कि इसका जो महाराज का आर्ट होता है वही आर्ट काम में आता है, और वो आर्ट से ही बनता है। क्या बात है. उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रीफिक्स है। उसमें मेन चीज़ है अपना जो हमने प्रोसेस सेट किया हुआ है यहाँ पे। जी. उसमें जो ऑयल यूज़ होता है तो वो प्योर सिंग तेल यूज़ होता है, ग्राउंडनट ओह। ऑयल। एंड उसके बाद में बेसन भी हाई क्वालिटी ऑफ बेसन यूज़ करते हैं। उसमें असाफोटिडा मीन्स हींग डालते हैं, तो जो फ्लेवर आता है आपको वो हींग का है। और जो दूसरा फ्लेवर है वो सिंग तेल का फ्लेवर होता है, Okay. जिससे गुजराती मानस अट्रैक्ट होते हैं। ओके, दिस लुक्स सो अमेजिंग. ऐसा लग रहा है मशीन से एकदम प्रिसाइज कटाया है. હું બનાવી શકું છું એકવાર? બનાવી મને આવડતું તો નથી, પણ હું ટ્રાય કરીશ. यू कैन ट्राई। ऑफ कोर्स. थैंक यू. आई एम श्योर बनेगा नहीं, लेकिन यू कैन ट्राई। यस बनेगा तो नहीं. ये फाफड़ा है, क्या बात है. यही बेसन है, यही सब कुछ है, ये Same. फाफड़ा है। क्या बात है. इतने प्रिसिजन के साथ. क्या बात है. બના શકते जी. लेट मी ट्राई. सो मैंने यूजुअली बनाया तो नहीं है, बट लेट मी सी. ऐसे. यस और ये यस, मेरे ख्याल से शाम तक तो आप हो जाएंगे इनके वजह से. अमेजिंग. थैंक यू. इट्स सच अ ट्रीट टू वॉच इट लाइव. एंड वो जहाँ तैयार हो रहा है तब तक यहाँ पे दूसरा इन प्रोसेस है. दैट्स अमेजिंग. वही प्रिसिजन के साथ. उसमें बल प्रयोग ज़्यादा है जी. और प्रिसीजन भी रखना है साथ साथ। ये महाराज ने हमारे 3 घंटे में 700 लोगों को ऐसे फाफड़ा खिलाया। क्या बात है. 2 महीने दैट्स पहले। अमेजिंग. कोई भी फूड होता है ना, जो वो बनाने का तरीका जितना सिंप्लीफाई रखो इतना उसका टेस्ट बढ़िया आता है। ये होममेड फूड जैसा फूड है। ये अपना मदर टेस्ट है। अपना मदर टेस्ट में अब यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर मदर टेस्ट। दैट्स तो उसमें घर में जिस सिंपल तरीके से बनाते हो, इसी सिंपल तरीके से आप बनाओगे तो इसमें कोई टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड करोगे इतना टेस्ट डिटोरिएट होता जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया, और इन्होंने 3 घंटे में 700 लोगों को 700 खिलाया. दैट्स सच अ माइलस्टोन. और हमारे गरम गरम फाफड़े हैं तैयार. इट इज सो सॉफ्ट दैट ऐसे टच से ही वो टूट जाता है. इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा है, मुंह में रखते ही मेल्ट हो जाता है. बहुत ही मज़ा आ गया ये बनाने में. सो इसके अलावा और भी वेराइटीज़ ऑफर करती है टी पोस्ट. आप उसके बारे में बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? हमारे यहाँ गुजराती सेक्स में थेपला भी अवेलेबल है। फिर ये गाठिया तो आपने देख लिया, हांडवा अवेलेबल है, ढोकला अवेलेबल है, मुठिया ढोकला अवेलेबल है। फिर बाद में बच्चों के लिए सैंडविच बैंडविच सब कुछ अवेलेबल है। सो मेनी वेराइटीज़ आर ओवर हियर। लेकिन ये गुजराती फूड सब ऐसा फूड है कि जो लोगों को पसंद आता है और हम यहाँ पे फ्रेश बनाते हैं। Right. एज फार एज थेपलाज आर कंसर्न, थेपला हमारा सेंट्रल किचन में बनता है और हर रोज़ का हमारा प्रोडक्शन है। 200 किलो थेपला बनता है हमारे यहाँ और सब आउटलेट में सप्लाई होता है। और 30 लेडीज़ बनाती है, हैंडमेड थेपला है, 30 लेडीज़ बनाती है। हर रोज़ का हर रोज़ वो सब सेंटर में पहुँचाते हैं और सब सेंटर में फ्रेश थेपला मिलता है। तो एवरीडे सप्लाई है हमारा वहाँ से। ये राजकोट में बनता है और राजकोट से पूरे इंडिया में मेरे 4 स्टेट में जहाँ जहाँ पे ये से स्टोर है वहाँ पे ये सप्लाई होते हैं। અમારા થેપલા એટલા ફેમસ છે કે લોકો ઇન્ટરનેશનલી ખૂબ જ થેપલા અમારે ત્યાંથી લઈ જાય છે અને ત્યાં પ્રિઝર્વ કરીને રાખે પણ છે। અને ગુજરાતી થેપલા વગર અધૂરો છે। અમારો ગુજરાતી કોઈ પણ જગ્યાએ જાય તો એના બેગમાંથી થેપલા તો નીકળે જ। અને અમે હસતા હસતા એવું પણ કહીએ છીએ કે અહીંથી જાતી કોઈ પણ અમેરિકા જાતી કે કોઈ પણ વિદેશ જાતી ફ્લાઇટને તમે સ્કેન કરો તો 200 કિલો થેપલા વગર અમારી ફ્લાઇટ ન જાય। એટલે થેપલા અમારા બી બધે જાય છે ને થેપલા વગર ગુજરાતી અધૂરો છે। दैट्स ट्रू। मतलब किसी को भी जाना हो बाहर तो बिना सोचे समझे जा सकते, क्योंकि गुजराती फूड वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ऑल थैंक्स टू टी पोस्ट, द Thank you so देसी much. कैफे। थैंक यू सो मच। आइए प्लीज़। श्योर। जिसके बारे में आपको बता रहा था हमारी दूसरी वेराइटीज़, ये है
मुठिया, थेपला, ढोकला और ये गाठिया का पैकिंग जो लोग घर पे लेके जाते हैं इसी तरह से हमने ये पैकिंग को ऐसे बनाया है कि जो इंटरनेशनल फूड जैसे मिलता है इसी तरह से इसका पैकिंग बनाया है। ये मुठिया ढोकला ये ढोकला के साथ में हमारा जो स्पेशली जो बनाया गया है वो गार्लिक पेस्ट है। गार्लिक पेस्ट के साथ मिर्ची, गार्लिक पेस्ट वो सब मिला के, इसमें शक्कर नहीं है। क्या बात, ये पर्टिकुलर थिंग में ऐसा चीज़ है कि जो जिसमें शक्कर नहीं है और ये इससे बनाया चटनी है। पीपल लव इट वेरी मच। सिर्फ स्पाइसी। हाँ, और थेपला के साथ हमारे यहाँ जो पैटर्न है वो स्वीट अचार है। हम गुड कैरी जो हमारे पैकिंग में हम पैक करते हैं और इसके साथ में ये सर्व होता है। इट्स अमेजिंग गुड कैरी, पीपल लव दिस गुड कैरी। ओके, और ये आपकी एक्सक्लूसिव आइटम है, ये कहीं और नहीं बनाई हुई मिलती। है और हम भी पैक करवाते हैं। दैट्स अमेजिंग। और ये है खींचू जो गुजराती लेडीज को बहुत पसंद होती है। हाँ, सभी को पसंद होता है। इनफैक्ट इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि बस आई कांट वेट टू ट्राई दीज ऑन। आप कुछ भी ले सकते हैं इसके साथ में। सो आई विल हैव अ मुठिया, सो विद द लहसुन की चटनी जो कि स्पाइसी है। Yes, yes. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। क्या बात है, मज़ा आ गया। प्रॉपर स्पाइसी, प्रॉपर तड़कीला, एकदम मज़ा आ गया। किसी का भी ब्रेकफास्ट सुधर जाएगा अगर ये खाएंगे तो। ये भी सब वैरायटी ऐसी है कि पीपल लव दिस ब्रेकफास्ट। दैट्स ट्रू, दैट्स और ये दिन में अमेजिंग। कोई भी समय आप खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह ही खाना है, दोपहर खाना है, एनी टाइम यू कैन ईट ऑल दिस। That's the speciality about Gujarati food. You can have it anytime and anywhere. हमारे यहाँ रात को 2 बजे तक लोग ये सब खाते हैं। क्या बात है? Yes, हमारा ये स्टोर है वो रात को लेट तक खुला रहता है और रात को भी ये लोग खाते हैं। And this store is made for specifically evening time purpose, gossiping time. दिस इज That's इवनिंग amazing. हैंगआउट। गुजराती लोगों की एक हैबिट होती है रात को ड्राइव करने, शॉर्ट ड्राइव उसकी नीड है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लिकर चाहिए। हाँ, ये जैसे दो स्टेट में जो लिकर अलग होता है, हमारे यहाँ फर्स्ट लिकर चाय है। तो चाय एक ऐसा लिकर के उसके साथ में आप कुछ भी गॉसिप करना है तो चाय एक मीडिया है। तो पीपल कम ओवर हियर विद द फैमिली एंड दे डू गॉसिप ओवर हियर विद फ्रेंड्स एंड एवरीवन। तो यहाँ आके बैठते हैं, बातें करते हैं और 2-2 घंटा यहाँ पे समय देते हैं। चा ऊपर चर्चा। चाय पे चर्चा। राइट, क्या बात है, मज़ा आ गया बहुत ही। सो टी पोस्ट की स्पेशलिटी है जो कि नाम में ही है चाय, और बहुत ही ज़्यादा सुना है आपकी चाय के बारे में। आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? हम चाय से ही जाने जाते हैं और हम यहाँ पे 17 प्रकार की अलग अलग ठंडी गर्म अलग अलग चाय बनाते हैं। तो मैं आपको चाय बनाने में ही लेके जाता हूँ। आप बनाएंगे खुद चाय अपने? Oh my God, I'm so excited. आइए हमारे गुजरात की चाय। Wow. Smells amazing. આ છે અમારી અલગ અલગ પ્રકારની ચાય। આ બ્લેક ટી છે, આ ડિટોક્સ છે જે અલગ અલગ હર્બ્સ મિક્સ કરીને બનાવેલી ચા છે। ધીસ ઇઝ આઈસ ટી જે અમે એકચ્યુઅલ ચા વાપરીને આઈસ ટી બનાવીએ છીએ। અને આ બધી મિલ્ક ટી છે જે ડિફરન્ટ ફ્લેવર્સની ચા છે। આમાં જિંજર પુદીના છે, સિનામોન ટી છે, ઇવન સેફ્રન એન્ડ ઇલાયચી મિક્સ છે, આવી અલગ ક્લોવ ટી છે, અલગ અલગ પ્રકારની ચા છે। અને આ બધી ચા અમારી કુલ્લડમાં અમે સર્વ કરીએ છીએ। तो एक मिट्टी की खुशबू पण अपनी साथे आवे छे અને पीपल या गुजरात की खुशबू इसके साथ में जुड़ी हुई है। So, कौन सी वाली ट्राई करने जैसी है? मुझे लगता है कि ये धूप है तो यू शुड ट्राई दिस आइस टी। आइस टी। या गर्मी के मौसम में आइस टी इज वेरी गुड। मज़ा आ गया। वेस्टर्न टच के साथ ये जो ट्रेडिशनल कुल्हड़ है, मज़ा ही आ गया। किसी ने सोचा नहीं था कभी कि आइस टी भी इसमें सर्व की जा सकती है। हमारे यहाँ चाय के बाद चाय ही पीते हैं लोग क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लिकर फॉर गुजराती पीपल। हमारे वी आर द ड्राई एरिया है तो चाय इज द फर्स्ट लिकर फॉर अस। That's true, that's true. So this is the one and only Tea Post, the Desi Desi Cafe. Cafe. Cheers.